नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौवाहिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव नियुक्त निराकार। परमात्मा प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्मा प्रकाश નો સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા છે। એમાં 68મી ગાથાનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। આચાર્ય ભગવાનની 68મી ગાથા એનો અનિવાર અને એનો ભાવાર્થ કર્યા પછીથી પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ આ ગાથા ઉપર ઘણો વિસ્તાર કર્યો છે। એ વિસ્તારનો ઘણો ખરો ભાગ આપણે કર્યો છે। હવે આજે એ આગળ લઈએ। મૂળ ગાથામાં એ વાત કરી કે નિશ્ચય નહીંથી આ જીવ ઉત્પન્ન પણ થતો નથી અને આ જીવનો નાશ પણ નથી, એટલે મરતો પણ નથી। વળી એ બંધને કરતો નથી કે મોક્ષને પણ કરતો નથી, એમ શ્રી જીનેશ્વર ભગવાન કહે છે। અને પછી એનો વિસ્તાર કરતા એક પ્રશ્ન થયો કે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી જીવ મોક્ષને કરતો નથી ને બંધને પણ કરતો નથી, તો મોક્ષને નથી કરતો તો પછી મોક્ષનો પુરુષાર્થ કરવાની પણ કાંઈ જરૂર રહી નહીં। શુદ્ધ નહીંથી, શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી મોક્ષનો કરતા નથી તો શુદ્ધ નહીંથી મોક્ષ પણ નથી, અને તેથી મોક્ષ માટે કરેલો પુરુષાર્થ છે તે વ્યર્થ છે, નિષ્ફળ થાય છે। એવી એક શંકા કરી અને શિષ્યના મોઢે એ પ્રશ્ન મૂકી અને પછી એ શંકા કરી અને એનો પછી ઉત્તર આપ્યો, એનું સમાધાન આપ્યું અને એ ઉદાહરણ સહિત આપવામાં આવ્યું કે શુદ્ધ નિશ્ચય નહીંથી જે વાત કરવામાં આવી છે તો એ તો વસ્તુનું સ્વરૂપ એવું છે એની વાત કરવામાં આવી છે, પણ બંધ છે અને મોક્ષ પણ છે, અને બંધ મોક્ષ જે છે એ બંધ છે એનો મોક્ષ છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે। એટલે જો આ બંધ અને મોક્ષ પર્યાર્થિક નહીંથી છે, પર્યાર્થિક નહીંથી છે એટલે વ્યવહારથી છે। અને પછી ઉદાહરણમાં એ રીતે વાત સમજાવવામાં આવી કે જે બંધાયેલો છે એ છૂટે છે તો એ મુક્ત થયો એમ કહેવાય, પણ જે બંધાયેલો નથી એને આપણે મુક્ત થયો એમ નથી કહી શકતા। એટલે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી આત્મા બંધાયેલો નથી એટલે એનો મોક્ષ થાય છે એમ ન કહેવાય। એટલે એ વાત એ જગ્યાએ બરાબર છે, એ અપેક્ષાએ એ સ્થાને બરાબર છે કે ખરેખર શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી તો વસ્તુ તો શુદ્ધ છે, ભૂતકાળમાં શુદ્ધ હતી અને ભવિષ્યમાં શુદ્ધ રહેવાની છે, એટલે એ ત્રણેય કાળે વસ્તુ તો શુદ્ધ જ છે। અને જે ત્રિકાળ શુદ્ધ છે એને પછી મોક્ષ ક્યાંથી હોય? એટલે એ અપેક્ષાએ વાત જે હતી તો એમ કહેવામાં આવ્યું। અને બીજી વાત એ પણ ખાખેલી હતી કે એ વસ્તુ પોતે કઈ બંધ કરે છે એમ નથી, તો બંધ થાય છે, બંધ કરે છે। દ્રવ્ય ત્રિકાળી શુદ્ધ છે એ મોક્ષ કે બંધને નથી કરતું, કેમ કે એવું કરે તો પછી સિદ્ધ ભગવાનને પણ એમ બંધ થવા માંડે। જો વસ્તુ કરતી હોય એટલે ત્રિકાળી જે શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એ જો બંધ કરે તો પછી સિદ્ધ ભગવાનને પણ બંધ થાય, એટલે એવું નથી। અને પછી તો જીવ માત્રને બંધ થાય ને મોક્ષ થાય એમ પણ નથી। એટલે પુરુષાર્થને પણ ત્યાં સમજાવ્યો છે। એટલે પુરુષાર્થને સમજાવતા એમ કહ્યું કે જે બંધ છે, જે બંધ જે છે તો એમાં તો એનો ઉપયોગ પોતાના ત્રિકાળી શુદ્ધ સ્વભાવ ભાવે નથી, એટલે કે એને સ્વાનુભૂતિ નથી, એટલે કે સ્વાનુભૂતિના અભાવપૂર્વક જ્યારે ઉપયોગ છે એટલે કે બહારમાં છે તો એને બંધ થાય છે। અને એ જ રીતે જ્યારે એનો ઉપયોગ સ્વનું લક્ષ કરી અને સ્વાનુભૂતિ કરે છે
તો પછી એને નિર્મળ પરિણામ થતા, નિજરા થતા, આગળ વધતા પછી છેવટે મોક્ષ થાય છે. એટલે આ બંધ અને મોક્ષને માટેની વાત એ ઉપયોગ દ્વારા કરી, સ્વાનુભૂતિ દ્વારા કરી. કેમ કે સ્વાનુભૂતિ જે છે તે ઉપયોગાત્મક છે, અને સ્વાનુભૂતિ નથી કરતો એના અભાવમાં એ શુભાશુભ ભાવે થાય છે. એટલે ત્યાં પુરુષાર્થની વાત પણ સમાવી દીધી. એટલે આ ગાથાની અંદર આ બધી વાતને સમાવી લેવામાં આવી છે. એટલે આ ગાથા ખૂબ મહત્વની છે, અને એટલા માટે જ આ ગાથાનો આધાર રમેશારની 320મી ગાથાની ટીકામાં પણ કરવામાં આવ્યો, એનો આધાર લેવામાં આવ્યો અને વાત કરવામાં આવી છે. તો આજે હવે આગળ આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે લઈએ છીએ. भगवान स्वरूप परमात्मा जिनेश्वर तो ये कहते हैं, ये आना गया जिनवर यूं भणी, जीवो जन्म मरण ने बंद मोक्ष करते नहीं, ऐसा जिनवर कहते हैं, इसको जीव कहते हैं. उसको जीव कहकर जिनवर कहते हैं. ये समझ છે ને? અર્થ છે નવી ઉપજઈ ન મરઈ, બંધુઓનો મોખો કરી જીવો, એ જીવને जीव कहते हैं. समझ में आया? જે બંધ મોક્ષ કરે નહીં, જન્મ મરણ કરે નહીં, એ જીવ કો जिनेश्वर देवे એને જીવ કહા. છે જીવો જોયા જીણવર એવું ભણી. ત્રણલોકના નાથ इच्छा विना वाणी में ऐसा आया. हे योगी, આ જીવને જીવ જીનવર કહે છે. પર્યાયમાં બંધમુખ કરે તે જીવ નહીં, એ તો વ્યવહાર કરીએ, નિશ્ચય જીવ નહીં. સમજ में आया? ગજબ વાત છે. બંધ મોખો કરી નહીં, ઉભરે મરે નહીં, એ જીવ, ये परमार्थ है. योगी तेने जीव कहते हैं, और जीणवर यूं बने. त्रिलोकना नाथ अनंत तीर्थन करो एम कहते हैं. समझ में आया? ओहो, इन्हें जीव कहते हैं कि जो बंद मोक्ष ने जन्म मरण करे नहीं. पर्याय में बंद मोक्ष होता है तो व्यवहार आत्मा हो गया, परमात्मा आत्मा न रहा. समझ में आया? અને निश्चय मोक्ष मार्ग भी पर्याय है तो ये भी व्यवहार हो गया. विकार द्रव्य में बंद मोक्ष नहीं, ऐसा जीव को जीव कहते हैं. तो और जब मुक्ति पर्याय हुई तो व्यवहार आत्मा हो गया. समझ में आया? प्रभु ना कथन एवा भाई. વિતરાગ જીનવર એવો ભણે. સંતો પણ કે છે ને, આ દિગંબર સંતોની ધ્વનિ તમે દેખો. जिनवर ऐसे कहते हैं, अनंत जिनवर, एक जिन अनंत जिनवर, एक ही अनंत जिनवर ऐसे कहते हैं कि जे जीव जन्म मरण ने बंद मोक्ष न करे तेने में जीव कहिए. हैं? उसको हम परमार्थ आत्मा कहते हैं.
पर्याय बुद्धि छोड़ाने को और द्रव्य तरफ झुकाने को ही बात कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसका आश्रय करने लायक नहीं। निश्चय बद्ध मार्ग है राग, वो तो आश्रय करने लायक नहीं। पर पर्याय में मोक्ष होता, मोक्ष मार्ग होता है, ये आश्रय करने लायक नहीं। हाँ हाँ हाँ। निश्चय मोक्ष मार्ग में आश्रय करने लायक भिखारी जीव जो बंद मोक्ष से रहते हो। निश्चय मोक्ष मार्ग में निश्चय मोक्ष मार्ग का भी आश्रय नहीं। बराबर। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? आओ मार्ग से भाई। हाँ हाँ। अनंत जिनवर એટલે वितरागी प्रधान परमात्मा। जिन तो चौथा पांचवा नहीं चाहिए, आ तो जिनवर एवं श्लोक है। जिनवर वितराग परमात्मा पूर्णानंद का नाम। એ જીવને આવા જીવને જીવ કહે છે કે જે મદમોક્ષ કરતો ये पर्याय में करते नहीं, उसको जिनवर जीव कहते हैं। अरे भगवान, आ बात क्या से बापू? आ त्रिलोकना नाथना घरनी वातों भाई। अरे पांचमो आरो इतनी जीव तो छे कई छे। चौथे आरे बीजो जीव, पांचमे आरे एम थे कई। पांचमे आरे पण जीव तेने के थे भगवान। आनंद जिनवर उसको जीव कहते हैं कि जे बंध मोक्ष नी पर्याय ने जन्म मरण में करे नहीं, एने जीव कहते हैं। को समझाई से काई? लो, आप पर्याय न जीव न कहिए, मोक्ष मार्ग ने पर्याय ने जीव न कहिए, मोक्ष ने जीव न कहिए। ये व्यवहार जीव है। पर्याय वाला जीव એટલે पर्याय એટલે વ્યવહાર, દેવ એટલે નીચે। ભગવાન તારી બલિયારી નાથ तुमको રહીને पर्यायમાં ન આવે। एवा जीव ने परमात्मा कहते हैं कि हम आत्मा कहते हैं। हे आत्मा राम, क्या नजर कर, जे द्रव्य बंध मोक्ष ने करतो નથી, જે જીવ મોક્ષના પરિણામને કરતો નથી, એમ જીનવર કે છે। એવા જીવને જીવ અહીં કહીએ છે, कहते हैं क्या नजर कर। समझ में? हाँ हाँ हाँ, गजब बातों से बात। दुनिया में એવું લાગે કે હું આ ભાઈ હે મીઠું એવું છે બાપા। હા હા હે જીવ અને મોક્ષના વચમાં કોઈ સંબંધ છે કે નથી? पर्याय पर्याय में ये द्रव्य द्रव्य में है। द्रव्य में पर्याय का अभाव है, ऐसा संबंध है। समझ में आया? पर्याय धर्म का द्रव्य धर्म में अभाव है, द्रव्य धर्म में पर्याय धर्म का अभाव है। हाँ हाँ, ऐसा तो कहीं दिखा नहीं होगा। है? ऐसा तो कहीं दिखा नहीं होगा। हाँ दिखा है। विद्या दिखा।
देखा है सामने देखा હા 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 શું પ્રભુની શૈલી जीनवर उसको जीव कहते हैं। हाँ 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 एम संतो आड़तिया होकर जिनवर का माल प्रसिद्ध करते हैं। आड़तिया कहते हैं, आड़तिया होते हैं। माल बताना संतो दिगंबर संतो आड़तिया होकर जिनवर ऐसा माल कहते हैं तेरे रुचते हैं। भगवान तुम स्वरूप टिकाव है, सदृश वस्तु है, सामान्य है, एमा विशेष का प्रभाव है। हाँ हाँ एम कहते हैं सामान्य जो चीज है ये विशेष को करती नहीं। हाँ 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 गजब बात है। करती नहीं है तेरे तो छूटी भी नहीं पर्याय को द्रव्य पर्याय को छूटी नहीं। तो बहुत अधिकार है यहाँ 49 गाथा समय सार व्यक्त में अव्यक्त को एक जानते हुए भी व्यक्त को आत्मा स्पर्शते नहीं। व्यक्त नाम पर्याय और व्यक्त नाम द्रव्य, ये द्रव्य और पर्याय का एक समय साथ में ज्ञान होने पर भी अव्यक्त और व्यक्त को छूते नहीं। द्रव्य मुख की पर्याय को छूते नहीं। हाँ हाँ ये भगवान आम के छो। हाँ 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 और पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। 49 અલિંગરણ માં આયા 19 बोल 20 बोल में 19 का बोल पर्याय को पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। अर्थाबोध रूप विशेष पर्याय ये आलिंगन करे बिना द्रव्य शुद्ध है। पर्याय का आलिंगन किए बिना द्रव्य को शुद्ध कहते हैं। અને જોરે કેટલો મેળ શુદ્ધ નહીં ઉતાળી निर्मल पर्याय सहित जो द्रव्य ने देखो तो अशुद्ध नहीं कहते व्यवहार कहो न व्यवहार क्यों नहीं। क्या कहते हैं भगवान कहते हैं इतना सुनो भैया। क्या किया कि मोक्ष की पर्याय जो है केवल ज्ञान की पर्याय जो है ये द्रव्य प्रभु पूर्ण चाहिए नहीं पर है पर्याय नहीं है दोनों के बीच में अत्यंता भाव है। हवा है वो 4 जातना भाव वो नहीं प्राग भाव प्रध्वंस भाव अन्योन्य भाव ये नहीं। हाँ तो अध्यात्म का राग में यानी आत्मा में अत्यंत भाव ये दूसरी चीज है। वो 4 भाव से दूसरी चीज अध्यात्म की चीज। हाँ हाँ ना तो भाव हाँ राग में न आत्मा में अत्यंत भाव आते समय साहब
ये वो चार भाव वाली चीज नहीं, हाँ तो अध्यात्म की चीज है। ऐसे द्रव्य में पर्याय नहीं, ये अभाव, ये अध्यात्म का अभाव। जो गिरभाई के फिर निरा बुझाયું પાછું હું પણ સહન કર સવારે નહોતા। भगवान थोड़ू पण सच्चा है, हमने समझ में आया। जिनवर आन तीर्थंकरो दिव धनी में ऐसे कहते हैं कि जीव इसको हम कहते हैं कि ये मोक्ष की पर्याय को करे नहीं, इसको हम जीव कहते हैं। परमार्थ जीव, द्रव्य, आत्मा वस्तु, मूल वस्तु। निश्चय जीव, निश्चय आत्मा, જેને આડત્રી ગાથામાં કહ્યું છે ને નિયમસારમાં, એ ટીકાળી ભગવાન એ નિશ્ચય આત્મા હે। લોકોને શૈલી તો જુઓ, દિગંબર સંતોની શૈલી તો જુઓ। ઓહો, ચારે કોરથી સચ ખરા હોતા હે। ત્યારે એમ કહ્યું સમજે। શું કહ્યું આ છેલ્લું? 38 निश्चय आत्मा इसको कहिए। ओहो, ये परम परिणामी भाव स्वभाव જ્યાં કહ્યો ને, પરિણામી પરમ ભાવ ગ્રાસ, એને આત્મા કહીએ। એ આ જીવ કરીને કહે છે। ભગવાન તારે એક વાર રાગને ભૂલવો પડશે, દુનિયાને ભૂલવો પડશે, આખી દુનિયાને જ ભૂલવી પડશે। राग को भूलना, अरे पर्याय को भूलना पड़ेगा तेरे का। समझ में आया? पर्याय क्या काम करेगा कि जब पर्याय को भूल जाएगा तब। पर्याय को भूल जाएगा, पर्याय को भूल जाएगा एक दफा सारी पर्याय तो एम जानती है कि मैं तो टीका मेरा हूँ, वो मैं हूँ। आया ना वो पंचविश, ये जाइए। मोक्ष का मार्ग सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप है, इनके तो पण जाता पुरुष मोक्ष का मार्ग को जाते नहीं। तो पण जाता पुरुष ऐसे भावते हैं कि जी सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, जिस सकल निरावरण टिकाओ अखंड वस्तु पर्याय में भेद नहीं है, एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय। क्या कहते हैं? ज्ञानी पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है, ज्ञान की पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है, ये चीज आती नहीं पर प्रतिभास होता है। समझ में आया? अविनश्वर शुद्ध परिणामी परम भाव लक्षण निज परमात्मा दृष्टि में हूँ, पर्याय जानती है कि मैं आ हूँ। भगवान कहते हैं कि जीव आ है, पर्याय कहती है कि आ मैं हूँ। वो तो समझ में आया है? बुद्धि ने पर्याय कहती कि आ मैं हूँ, मैं उसका ज्ञान करती हूँ। ये मैं हूँ एम कहा ना, देखो
ज्ञाता पुरुष ऐसे भावना करते हैं कि जी सकल अखंड एक प्रतिभस्म જ્યાં જીવ का हो અહીંયા का हो ये प्रत्यक्ष प्रतिभास्मय एक रूप છે અખંડ છે એક રૂપ છે જેમાં પર્યાયનો ભેદ નથી એવું प्रतिभास्मय अविनश्वर शुद्ध परिणामी परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य तेज मैं हूं परंतु एम भावता नहीं के खंड ज्ञान हूं मोक्ष मार्ग नहीं पर्याय का ध्यान नहीं करते हम कहते हैं मैं मोक्ष ज्ञान की पर्याय हूं ऐसा नहीं मैं बाप हूं आई बात तुमसे भगवान શું કર્યા મોટો પરમાત્મા પ્રભુ તું છો ભાઈ શું વાત કરી છે એને જીવ અમે કહીએ છીએ त्रिलोकना नाथ जिनवर देवो एम कहते हैं कि उसको हम जीव कहते हैं कि जो मोक्ष मार्ग में मोक्ष की पर्याय नहीं करते हैं उसको हम जीव कहते हैं। समझाई से कहेंगे आइए कहीं पर्याय पर्याय एम जानती हैं कि जो आई जीव कहा वो मैं हूं समझ में आया। यहाँ जो कहा जानवर आ जीव के मोक्ष की पर्याय मोक्ष का मार्ग की पर्याय कोई करती नहीं करे नहीं इसको हम जीव कहते हैं। जाता ये जीव को जाता है तो मेरा भाई आई बात से भाई कोई वारा भी निकले हैं थोड़ी तो मुंबई में चाली थी 320 गाथा आज વધારે આવે છે આ જીવો કીધો ને વિતરાગે જીવાને કીધો તો પર્યાય પણ એ જીવને જાય છે એ હું છું પર્યાય એમ કે છે આ જીવ હું છું એટલે હું જ આ છું એમ કેમ ભાઈ હિંમતભાઈ એ કહે છે આ હું છું वितराग कहते आ जीव कहवाय कि जे जीव को मोक्ष की पर्याय भी कहते हैं इसको हम जीव कहते हैं। तो पर्याय हम जानती है धर्मी की तिगाई चीज में अखंड एक रूप चीज हूं ये मैं हूं जिनमें कहेगा आ जीव तो पर्याय कहते आ मैं जीव हूं। भगवान ने जिन्हें जीव कहा ये जीव को जो पर्याय मानती है एने आत्मा को मान्या समझ में आया जो मकर हो गए हो। परमात्मा प्रकाश चलते हैं और सट जाता आखिर का भाव है देखो उसी प्रकाश क्या है छठी लिटी है आखिर की। पहले क्या कहा दृष्टांत दिया कि कोई प्राणी सांकल से बंधा हो उसको छूटा कहना वो वाजिबी है पर जो बंधाए नहीं उसको छूटा कहना गैर वाजिबी है। समझ में आया दृष्टांत है सांकल का सांकल समझते हैं सांकल सांकल है नहीं है यहाँ है सांकल से हिंदी में है कोई प्राणी सांकल से बंधा हो तो उसको छूटना कहना वो यथार्थ है पर जो सांकल से बंधा ही नहीं उसको छूटा कहना वाजिबी नहीं। ऐसे ये तो दृष्टांत हुआ ऐसे। उसी तरह यह जीव सुनिश्चय न कर बंधा हुआ नहीं भगवान आत्मा वस्तु जी स्वभाव चिदानंद है
त्रिकाली द्रव्य भाव स्वभाव भाव है, वो तो कभी बंधा ही नहीं। वस्तु क्या बंध है? समझ में आया? सूक्ष्म अधिकार है। एक समय में चिदानंद भगवान द्रव्य स्वभाव पूर्णानंद का नाथ, एक चीज को बंद कहाँ न मुक्ति कहाँ, समझ में आता है? हाँ। वस्तु स्वभाव जो द्रव्य स्वभाव पर्याय बिना का, पर्याय बिना का, ये द्रव्य स्वभाव जो है ये बंधा ही नहीं। मुक्त है तो मुक्त स्वरूप त्रिकाल शक्ति स्वरूप मुक्त स्वरूप ही है। सूक्ष्म बात है भगवान। ये चीज जब दृष्टि का विषय है, ये तो कभी बंधा ही नहीं, कभी मुक्ति होती नहीं है। इसका मुक्त कहना ठीक नहीं। हाँ, द्रव्य स्वभाव जो शुद्ध अखंड आनंद प्रभु, जो 14-15 गाथा में कहा न, अबद्ध स्पष्ट, ये अबद्ध स्वरूप है। ये तो बंधाई चीज नहीं, वस्तु बंधाई कैसे है? पर्याय में बंधन मुक्ति है। समझ में आया? हाँ। पर्याय वर्तमान दशा जो व्यवहार नई का विषय है, ये पर्याय में बंधन है, पर्याय में मुक्ति है। समझ में आता है? घनी बात है। अपने को पर्याय से क्या करना है? अपन को करना पर्याय में करना है, नहीं करना क्या ध्रुव में करना है। मोक्ष मार्ग तो पर्याय है, ये अशुद्ध नहीं का विषय है। ध्यान रखिए, पर्याय है न, मोक्ष मार्ग भी पर्याय है और बंद मार्ग भाव ये भी पर्याय है। तो दो ही अशुद्ध नहीं से है। अशुद्ध का अर्थ पर्याय से है, पर्याय का अर्थ व्यवहार से है। सूक्ष्म है भगवान। वस्तु जो है तो निष्क्रिय परिणमन बिना की चीज है, सूक्ष्म अधिकार है। भगवान आत्मा जो उत्पाद वही की पर्याय से रहित जो ध्रुव है, वो तो बंधन में नहीं है, मोक्ष में नहीं है। हाँ, समझ में आया? वो कहते हैं देखो, शुद्ध नहीं कर बंधा हुआ ही नहीं, वस्तु ही बंध है तो वस्तु का अभाव हो जाए। समझ में आया? सूक्ष्म विषय है भाई। सम्यक दर्शन का विषय वो बंधने मुक्ति की पर्याय से रहित है। समझ में आया? परमात्मा प्रकाश है ना पंडित जी, परमात्मा प्रकाश, बंशीधर जी, परमात्मा प्रकाश है न? वो तो पंडित जी को कहते हैं, पीछे पंडित है पुस्तक है ना। समझ में आया? और सठ गाथा ऐसी है कि जीव को जन्म नहीं, मरण नहीं, बंध नहीं, मोक्ष नहीं, इसको जिनवर जीव कहते हैं। और सच गाथा जीणु है शब्द, नरी उपजई न मरई, न उत्पाद होता है जिसमें न व्यय होता है।
बंधु मुखू न करिए। हाँ, बंद न करे, मुख न करे। ये योगी, ये संत गुरु कहते हैं, ये सिद्ध जोगिया जोगी जीव जिनवर यू भणी मूल गाथा। जिनवर उसको जीव कहते हैं। कौन जीव? क्या? जो निश्चय आत्मा त्रिकाली वस्तु ते जीव, पर्याय नहीं है। एक व्यवहारो जीव और एक नित्य जीव, दो प्रकार का है। जीव का दो प्रकार, और उत्पाद वही पर्याय वाला को व्यवहार जीव कहते हैं। एक जीव पर्याय ने द्रव्य का दो भेद है। पर्याय ने द्रव्य दो भेद है। पर्याय द्रव्य में आती नहीं और द्रव्य पर्याय में आता नहीं। सूक्ष्म है भगवान। सर्वज्ञ वितराग जिनवर एम कहते हैं कि उसको हम जीव कहिए, निश्चय जीव, वास्तविक जीव, એટલે यथार्थ आत्मा, इसको हम कहिए कि जिसको उत्पाद वही नहीं, जन्म मरण नहीं, बंध मोक्ष नहीं। समझ में आया? बंध ने मोक्ष उत्पाद वही तो वही पर्याय दृष्टि में है, पर्याय नई का विषय में है। द्रव्य नई का विषय में ही है नहीं। समझ में आया? जिनवर यूं भणी अनंत जिनवरो एम कहते हैं कि परमार्थ जीव इसको कहिए जो सम्यक दर्शन का विषय। सम्यक दर्शन है पर्याय, पर उसका विषय है ध्रुव द्रव्य। ये द्रव्य जो त्रिकाली ध्रुव है, जिसमें उत्पात वही नहीं, जिसमें बंध मोक्ष नहीं, इसको जिनवर देव परमार्थ भगवान आत्मा उसको कहते हैं। समझ में आया भैया? हाँ। पर्याय मंत्र जो पर्याय है वो तो व्यवहार नहीं का विषय है। चाहे तो मोक्ष हो कि मोक्ष मार्ग हो, व्यवहार नहीं का विषय है। व्यवहार खोटो कई अपेक्षा से, ये तो त्रिकाली ने अपेक्षा है भूतार्थ, तो अपनी अपेक्षा है तो भूतार्थ है। हाँ। जीणो विषय है गाथा जीनी बहुत है। हाँ। सूक्ष्म। हाँ। ઘણું જ લક્ષ્ય રાખીને સુનने लायक चीज है यार। अनंत काल में वो चीज क्या है उसने लक्ष्य में लिया ही नहीं। जी भगवान आत्मा एक समय में जो ध्रुव है, ये ध्रुव में तो उत्पाद ही नहीं, उत्पाद वही तो पर्याय में है, और बंधने मोक्ष भी पर्याय में है। बारी वातों हजी तो लोग बार में व्यवहार करे दयादान ने एनाथी मुक्ति, ये तो क्या ही रह गयु प्रभु। यहाँ तो भगवान आत्मा एक समय में
सच्चा उत्पाद वही जो है, उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत चिताते हैं सत्ता सूत्र 10 लक्षणी पर्व में आते हैं। उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत, भगवान आत्मा उत्पाद वही અને ध्रुव तीनों मिलकर प्रमाण का विषय है, प्रमाण का विषय है। और उसका 2 भाग पाकर त्रिकाली द्रव्य जो है ये बंध मोक्ष रहित है, ये सम्यक दर्शन का विषय है। और बंध मोक्ष की पर्याय है, ये व्यवहार नहीं का विषय है। समझ में आया? भाग वितराग का बहुत सूक्ष्म अलौकिक बात है। एक ऐसी बात क्या है, वितराग सर्वज्ञ शिवाय आवाज क्या है, सितंबर में है नहीं तो दूसरे में तो कहाँ लाना। तो सनातन जैन दर्शन उसमें आ कथा है, कथन समझ में आया? इनके क्या कहना है कि ये वस्तु बंध मोक्ष रहित है, ध्रुव उसका आश्रय करने लायक है, पर्याय का भी आश्रय करने लायक नहीं। मोक्ष ने मोक्ष का मार्ग का भी आश्रय करने लायक नहीं। पंडित जी सूक्ष्म विषय है भैया, एकदम बात गुलाट खाई है। वस्तु भगवान आत्मा एक समय में ध्रुव का पिंड जो है, ध्रुव स्वरूप है, जिसमें उत्पात वही बंध मोक्ष है नहीं। ये चीज को भगवान परमार्थ आत्मा कहते हैं। बंध मोक्ष की पर्याय को परमार्थ आत्मा नहीं। बंध मोक्ष तो पर्याय में है, पर्याय में राग की एकता का बंध और राग का अभाव का मोक्ष की पर्याय में है। समझ में आया? पर्याय में द्रव्य नहीं है, द्रव्य में पर्याय नहीं, इतना है तो साथ में। सुनो भैया, भगवान की बात आपको पूछता है, पर्याय में द्रव्य आता नहीं। ज्ञान की पर्याय में और श्रद्धा की पर्याय में सारा द्रव्य का ज्ञान और द्रव्य की श्रद्धा की है। समझ में आया? पर्याय में द्रव्य कैसा है इसकी श्रद्धा की है, द्रव्य नहीं आता। भाई क्यों नहीं? ठीक, अभी तो नहीं आते हैं, 2-4 वर्ष आया नहीं, जिन्हें श्रद्धा ठीक नहीं। समझ में आया? प्रभु तो एक बार सुन तो सही। तेरी द्रव्य की प्रभुता इतनी है कि जिसमें बंध मोक्षी पर्याय भी नहीं। समझ में आया? और बंध मोक्षी पर्याय जो है, ये पर्याय है तो व्यवहार नहीं का विषय है, अर्थांत अशुद्ध नहीं का विषय है।
मोक्ष ने मोक्ष की परिमोक्ष का मार्ग, भगवान एक बात सुन तो सही, ये मोक्ष का मार्ग जो निश्चय है, द्रव्य के आश्रय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निश्चय, वास्तविक मोक्ष मार्ग जो है, विकल्प है मोक्ष ये मार्ग है ही नहीं। ये वास्तविक निश्चय मोक्ष मार्ग खरेखर जो है वो भी पर्याय का विषय है, व्यवहार नहीं का विषय है, दूसरी भाषा कहीं तो अशुद्ध नहीं का विषय है। ભાઈ આવી વાત છે ભાઈ। ત્રિલોકના નાથ જીનવર દેવ सभा में इंद्रों ने गणधरों ने बीच में ऐसा फरमाते थे। ये बात है। भगवान तो कितना बड़ा है, कितना तेरा महात्म है, कितनी तेरी ध्रुवता दिखाता है। उसमें पर्याय का छूते नहीं। ये द्रव्य जो है ये मोक्ष मार्ग की पर्याय निश्चय को छूते नहीं, और मोक्ष मार्ग की पर्याय जो है ये द्रव्य को छूती नहीं। આવી વાત છે ભગવાન। અરે અત્યારે તો ગડબડ બધી આ વ્યવહારથી થાય ને એનાથી થાય ને દયા દાન વ્રત ને ખરો ને એનાથી। અરે ભગવાન ये तो बंद मार्ग है ना। उससे मोक्ष मार्ग होता है। बंद मार्ग वो द्रव्य का आश्रय लेते हैं। राग आदि भाव है तो है उसमें लक्ष्य पर का दिशा पर की है। ये दशा की दिशा पर तरफ है, ये दशा की दिशा पर तरफ है। और जो मोक्ष मार्ग सच्चा है ये उसकी दशा की दिशा द्रव्य रूप है। समझ में आया? अरे रे आई बात प्रभुनी लोग ये गड़बड़ में ये नाखी दीधी। शास्त्र में आवे ने व्यवहार रत्नत्रय परंपरा मोक्ष नु कारण ऐसा आते हैं। जिसको त्रिकाली भगवान बंद मोक्ष की पर्याय रहित है, इसकी जिसको दृष्टि अनुभव में हुई है, जिसको आनंद का स्वाद आया है, इतनी कहते हैं हिंदी अर्थांत। जो आनंद स्वरूप ध्रुव प्रभु है उसका आश्रय करने से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ तो ये आनंद की दशा हुई। त्रिकाली आनंद है उसकी आनंद दशा हुई। समझ में आया? અને રાગ ભાગ है जितना सुपयोग है भगवाने व्यवहार नहीं थी जे कथन करीने व्रत ने नियम ने तपस्या ने क्रियाकांड किया, ये सब अशुद्ध नहीं का विषय है और बंध का कारण है। अने मोक्ष का मार्ग जो है ये निर्मल पर्याय है, उसका आश्रय दाता भगवान है। दाता का अर्थ पर्याय को देती नहीं।
ये द्रव्य पर्याय की दाता नहीं। ये अपने आगे है आत्म धर्म में, योग सार का कथन आत्म धर्म में बहुत आगे है। अभी आत्म धर्म आते हैं बहुत सारा, स्पष्ट लोग को बहुत राज्य होता है। कार्तिक महीने से आत्म धर्म लोग को बहुत राजी खुश होते हैं। हो आत्म धर्म तो आत्म धर्म हवे आया। हाँ, क्या है कि जीव आत्म ने आत्म धर्म दो शब्द है। तो आत्म जो है ये तो त्रिकाली है, उसमें बंधन मोक्ष भी उसमें है, मोक्ष का मार्ग भी उसमें है नहीं। हाँ, जो बंधन मोक्ष है वो क्या 68 में बंध भी व्यवहार नहीं करे, बंध भी व्यवहार नहीं कर और मुक्ति भी व्यवहार नहीं कर है भैया। भाई क्या किया सुनो भाई, हाँ तो अलौकिक मार्ग है। बंध भी व्यवहार है, राग की एकता जो पर्याय में व्यवहार है, पर्याय है ना, और मुक्ति का मार्ग जो सच्चा निश्चय ये व्यवहार है, पर्याय है ना। वो तो रात से छूटी हुई दशा है, छुट्टी पण ये पर्याय है ना, पर्याय व्यवहार है। घणी बात है भगवान, यहाँ तो ત્યાં लगी कहा प्रवतनसार 47 नई 46 47 है ना नई प्रवतनसार पीछे, ત્યાં तो ऐसा कहा कि माटी को उसकी वासनादि पर्याय से देखना ये शुद्ध नहीं है। माटी को इकली माटी देखना ये शुद्ध नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा को निर्मल पर्याय सहित देखना वो शुद्ध नहीं है। ये सिद्धांत है उसमें प्रवर्तन साहब ने 46 47 46 समझते 40 और 6 और 47 40 और 7 आखिर के नहीं है ना दो। माटी को उसकी पर्याय जो वासन आदि वासन है ना माटी का बर्तन, तो बर्तन से माटी को देखना यह शुद्ध नहीं है। एक माटी को एक लीड देखना ही शुद्ध नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा को निर्मल पर्याय सहित द्रव्य को देखना वो शुद्ध नहीं है। गजब बात है। और एक ही बार द्रव्य को देखना त्रिकाली को ये शुद्ध नहीं है। समझ में आते हैं? मार्ग सूक्ष्म बहुत है भैया। वितराग जिनेश्वर दर्शन दिगंबर दर्शन, दिगंबर दर्शन है जिनेश्वर दर्शन, ये जिन दर्शन। ये सिवाय बीजी बात बीजे क्या है? सारी सत्य नहीं खेल नहीं है। शू क्या किया कि बंध भी व्यवहार नहीं कर, मुक्ति भी व्यवहार नहीं कर है। क्योंकि बंध ने मुक्ति तो पर्याय है, वस्तु में बंध मुक्ति है ही नहीं, ये तो त्रिकाली चीज है। वही सम्यक दर्शन का विषय है। भूयत्थम असीदो खलु समाइति हवई जीवो 11वीं गाथा। व्यवहार भूयत्थो पर्याय बधी अभूतार्थ है। मोक्ष ने मोक्ष ना मार्ग ने पर्याय भी अभूतार्थ है।
कई अपेक्षा से टीकार की अपेक्षा से उसकी अपेक्षा से है, पर वो पर्याय नहीं का विषय है। मोक्ष ने मोक्ष का मार्ग सच्चा हो, व्यवहार मोक्ष मार्ग है ही नहीं, ये तो आरोपण से कथन निरूपण है। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार का है, मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं। कथन में ऐसा आता है, जब अपना निश्चय मोक्ष मार्ग अपने से प्रकट होता है, उस समय में राग देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, पंचमावत का राग, साथ में व्यवहार सहकर देखकर निमित्त का उच्चार करके व्यवहार का है। ये मोक्ष मार्ग नहीं, फक्त निमित्त साथ में देखकर उच्चार किया है। આવી ચીજ છે ભગવાન। 68મી ગાથા નો વિસ્તાર ઘણો થયો, લગભગ પૂરી થવા આવી। હવે શેષ વિસ્તાર જે બાકી રહ્યો છે તે આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ।